So last time we discussed about the circuitry and some basic programs about the Arduino and what is the importance of that programming language or that circuitry. We have all discussed about how motors work, how we transmit the signals. All that was clear about you, like any doubts about the previous session. So we'll complete those doubts first, then we'll go ahead. Any doubts? Firstly, I will recapitulate a bit. We discussed about the microcontroller, the basic microcontroller here about Arduino. Arduino is just a board in which we can do the programming, like what programming the simpler task we assign machine. That's what we call the programming. So basically यहाँ पे जब हमने वो board पढ़ा, then we did some basic things of Tinkercad, I guess. Tinkercad मैंने दिखाया था. Avant displayed that thing. So through Tinkercad, have anyone checked that in home? Tinkercad? हाँ, मुझे faces से लग ही रहा है. मैं दिन भर classes में ही होता हूँ, so I got to know like how much people are. I said you the same day, like I can give the lectures on business part and all that thing, but it will be most irrelevant. Or my field is not about business, so if I will be more technical, that will be more good for this session. So as I give the example of Elon Musk that day, the basic thing about the business you should know about how the things are going on. For example, if you are starting the business of computer manufacturing, you should know how the computers are made in manufacturing. So हर किसी चीज़ का वो basics आपको पता होना चाहिए. And this program was all about the drone technology in agriculture. I guess. So here my lecture was proposed on AI in machine learning based drones in agriculture actually. So before that, I just recapitulate all the things which are needed for this like session. So that day, I think we are having more BTech students now. Yes, you were not present on the same day, so I will just design some basics, then we will go. Is that fine for you guys? Because they are new. If I go out. Yeah. So we talked about a board Arduino, in which we did a basic programming on a blinking of LED. What is the blinking of LED? Just 1 second on, 1 second off. In which we made some basic codes like we read about digital and analog writes. Digital writes are basically about 1 and zeros, high voltage and low voltage. In that blinking we did high for a second and low for a second. Every machine doesn't do any work by their own selves. We just have to program. For example, आपके पास एक मोबाइल फोन है या कोई भी मशीन है या हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले है या कंप्यूटर है, कोई भी मशीन या आप ड्रोन देख रहे हैं, तो वहाँ पे कोई कोडर ऑलरेडी, कोई प्रोग्रामर ऑलरेडी बैठा हुआ है जिसने उस स्पेसिफिक मशीन पे कोडिंग की है और एंड यूजर वही कोडिंग और वही टास्क पे काम करता है. सिमिलरली यहाँ पे भी हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था ब्लिंकिंग ऑफ एलईडी का. इन दैट व्हाट वी डिड, 1 सेकंड के लिए ऑन और 1 सेकंड के लिए ऑफ. देन वी जस्ट मेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्रोन. ड्रोन में यूजुअली 4 मोटर्स होते हैं हमारे पास. तो वो 4 मोटर्स कैसे काम करते हैं? फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस एज अ ड्रोन, A motors, V motors. So ये दो मोटर्स एक डायरेक्शन में काम करते हैं और ये दो मोटर्स. इतना क्लियर है? आप लोगों ने देखा भी होगा फील्ड में ड्रोन कैसे काम करता है. So when we push up button, that means ये सारे मोटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं. ये एक डायरेक्शन में हो जाते हैं और ये वाले एक डायरेक्शन में हो जाते हैं. इतना क्लियर है? So वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती थी. इधर का लॉजिक सबको क्लियर है कैसे होगा? फॉर एग्जांपल जब हमारे पास एक ट्रांसमीटर होता है, वी आर हैविंग द ट्रांसमीटर है.
यहाँ पे एक अप बटन होता है, अप साइड जिसको हम कहते हैं, और उस अप साइड के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम रखा होगा किसी कोडर ने जिसने वो ड्रोन बनाया होगा। फॉर एग्जांपल कल को आप लोग ड्रोन बनाओगे, आप डाउनवर्ड्स के लिए अपवर्ड रख सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू द कोडर हाउ द ड्रोन वर्क्स। और राइट लेफ्ट की जगह आप इस साइड से भी वो पोर्शन शिफ्ट कर सकते हो, उसका कोई इशू, इट्स ऑल अप टू कोडर। बट देयर आर सम बेसिक्स जो कि हम फॉर एग्जांपल वो हायरार्की होती है, जैसे कि आप लोग कोई भी ड्रोन चलाते हैं, वहां पे अप साइड होता है और डाउन साइड होता है, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड, हर किसी स्पेसिफिक पोजीशन के लिए एक स्पेसिफिक कमांड होता है। इतना क्लियर है ना? और वो कमांड कौन सा होगा? वो कमांड ट्रांसमिट होगा ट्रांसमीटर से और रिसीव होगा रिसीवर से, देन इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स एमपीयू। You had the lecture on MPUs, so I will discuss on that also. So MPU is basically the brain for the drone. Here we are having MPU. This is actually called the brain. So यहाँ से एक रिसीवर भी इसके साथ कनेक्टेड होता है और कोई सेंसरीज वगैरह इसके ड्रोन के साथ। फॉर एग्जांपल आई डोंट नो व्हिच ड्रोन यू हैव सीन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अल्ट्रासोनिक सेंसर होगा, उस दिन भी मैंने एग्जांपल दी थी, अल्ट्रासोनिक सेंसर में हमारे पास एक ट्रांसमिशन के लिए होता है और दूसरा रिसीविंग के लिए होता है। And when the obstacle will come, it will transmit first, then it will get reflected by the obstacle and it will be received. Then these all data will be transferred to MPU, and MPU में जैसे एक प्रोग्रामर ने कोड किया होगा वो उसी हिसाब से ड्रोन काम करेगा, चाहे उसको स्टॉप करना है या धीरे धीरे चलना है, वो प्रॉपरली एक प्रोग्रामर तक होता है। इतना क्लियर है? एनी डाउट? MPU, I think microprocessor unit. Like it's the same like microprocessing unit. Microprocessor unit या microprocessing unit? flight unit, flight controller. Flight controller, yeah. Microprocessor unit भी कहते हैं, but there are some more technical terms which I didn't remind right now. So basically जो projects हम करवा रहे हैं, I will give you the brief intro about that also. That are called like low budget drones पे हम काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे मदरबोर्ड की एग्जांपल क्यों दी? This Arduino is called the motherboard. जैसे कि हमारे CPU में एक मदरबोर्ड होता है, यही मदरबोर्ड हमारे पास यहाँ पे भी है। And we are working on to make a drone in rupees for 50 rupees. For 50 rupees में एक छोटा सा ड्रोन हम बनाए। And you have seen like Chinese companies are making drones on minimum to minimum, हमारे पास अगर आप ऑर्डर करेंगे 1300 तक का मिल जाता है, 1300 का मिल जाएगा, B88 आई गेस। तो हम कोशिश कर रहे हैं 450 में बनाने की, एंड मोस्टली लाइक वी आर हैविंग 25 टीम्स ऑल ऑफ आवर इंडिया जो कि इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। सिमिलरली दे आर नॉट डूइंग दैट बिग साइंस, सिंपली वी आर हैविंग an ESP8266 chip here, and then this works as a brain. Then in this brain we are having integrated एक Wi-Fi chip होता है हमारे पास, और ट्रांसमिशन के लिए हमें रिमोट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, we are transmitting it by our mobile phone. So with that we have reached almost to 700 rupees right now, and now the aim is to reach to 450 rupees. So इतना क्लियर है? So यहाँ पे किस ट्रांसमिशन का यूज होता है? वाईफाई प्रोटोकॉल, और यहाँ पे RF। यूजुअली आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो ड्रोन्स आपने यूज किए होंगे वो किस प्रिंसिपल से काम करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पिछले बार भी डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का जब मैंने एग्जांपल दी थी। व्हाई डू यू हैव द कांसेप्ट ऑफ मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन? So modulation demodulation usually we see like, for example, you have radio in your phone and at your home. So वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा 92.7 बिग FM लास्ट में लगा, that means frequency modulation.
और एक और ऑप्शन आता था वहाँ पे AM का, जिधर पे हम करते थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने देखा होगा इधर पे रेडियो शोज वगैरह में, वहाँ पे ऐसी एक माइक होती है दिस कॉल्ड ट्रांसड्यूसर टू कन्वर्ट वॉइस एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, वो सब आपको पता होगा। सो जो वॉइस का फॉर्म होता है वो ऐसा कुछ होता है पहले। देन व्हाट वी डिड, वी एड अप सम मोर वॉइस टू इट, ताकि ये ट्रांसमिट बहुत दूर तक हो जाए। किधर तक ट्रांसमिट हो जाए, बहुत दूर तक। आपके घर पे भी FM आएगा, इसके घर पे भी आएगा, उनके घर पे भी आएगा। सो बहुत दूर तक ले जाने के लिए कौन सी चीज हम यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन। देन जब आप 92.7 घर पे लगाते हैं और आपने 92.8 लगाया, 9 लगाया, 10 लगाया तो शोर आ जाएगा। तो अगर आपने एग्जैक्ट 92.7 लगाया तो साफ क्यों आता है, बिकॉज उस टाइम पे परफेक्ट डिमॉड्यूलेशन होती है। उस टाइम पे परफेक्ट ये वाली जो हमने यहाँ पे एडिशन किया हुआ था वो अब सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। इतना क्लियर है? पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी ऐसा ही सीन होता है। ऐसे ही आप रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी देखोगे। अब डिपेंड करता है, जितना आप सस्ता RF लाओगे उधर तक आपका ड्रोन चले जाएगा। फॉर एग्जांपल जब जैसे आपके घर में होता था, छोटे बच्चे जब हम थे तो हमारे पास रिमोट कंट्रोल कार होती थी, 100-200 में आ जाती थी और उसकी रेंज यहाँ से लगभग 30 मीटर तक होती थी। अगर फिर महंगी लाते 100 मीटर तक, या अगर उससे ज़्यादा महंगी लाते थे मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक चला जाता था। बट इन ड्रोन वी आर हैविंग हाई एंड दिस ट्रांसमीटर रिसीवर। प्रॉब्ली अगर आप बेसिक रेंज से भी जाए तो 4000 से ही स्टार्ट होता है आई गेस, जो ड्रोन्स के लिए, परफेक्ट ड्रोन्स के लिए लगता है। अदरवाइज यू कैन यूज एनीवन। हियर वी आर यूजिंग वाईफाई फॉर दिस, बिकॉज इस ड्रोन की डिपेंड करता है फिर ड्रोन की एप्लीकेशन क्या होगी। इतना क्लियर है? यहाँ तक नहीं डाउट? थोड़े से डाउट्स पूछ लो। मेरे क्लास में सबको डाउट्स ही होते हैं। आप लोग तो भी थे, उनको मैं थोड़ा सा साइड ही कर दे रहा हूँ। असल में क्या ये इसमें क्या ऐड कर रहा है, जब ये वेव्स में किसी एक वेव दूसरा वेव बना देता है, असल में क्या ऐड कर रहा है? वॉइस, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अच्छा, वही इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वहां तक हमारे पास जब हम इस माइक में बात करते हैं यहाँ तक हमारे ये वॉइस फॉर्म में थी। अब ये किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। देन वही वॉइस जो एल्गोरिथम में हमने लिखी होंगी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, वो उसको एडप्ट करेगा और जब वो सेंड होगा और उसके बाद जब वो रिसीवर तक पहुंचेगा वो सेपरेट होगा, और जब राइटली सेपरेट होगा तो हमारी वॉइस क्लियर आ जाएगी। अगर राइटली नहीं होगा, हाँ सबके डाउट्स पे आप थोड़ा सा मजा आएगा क्लास में। नाउ वी आर अ बिट इंटरेस्टेड। दिस इज द क्लासरूम, सो सेशंस वगैरह एडवांस MDP प्रोग्राम साइड में रख के, ESDP प्रोग्राम साइड में रख के वी विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस क्लास। सो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो एग्जैक्टली हमारे पास अगर 92.8 थोड़ा सा आ जाता है ना तो थोड़ा सा शोर आ जाता है हमारे पास। दैट मीन्स उस वाली वेव की भी आवाज थोड़ी सी हमारे पास, अगर 10 पे जाएंगे, 12 पे जाएंगे, 30 पे जाएंगे तो ज्यादा हमारे पास नॉइस आएगी। आपने कहा आप ड्रोन बना रहे हैं 450 टारगेट, वो उसमें क्या हम कट आउट कर रहे होंगे जो 2 से महंगा बना रहे हैं, या उसमें एप्लीकेशंस क्या होगी, इस तरीके से यूज होगा? तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें एक छोटा सा ड्रोन, 4 विंग, उसके प्रोपेलर्स, देन यू विल गेट अ ट्रांसमीटर। हम इस ट्रांसमीटर पार्ट को पहले ही कट आउट करते हैं क्योंकि जो रेंज वाईफाई की है वही रेंज इस ट्रांसमीटर की है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसमीटर, देन व्हाट इज द यूज ऑफ सेपरेट सेपरेट ट्रांसमीटर। पहले हम ये चीज कट आउट कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज वी आर मेकिंग इट फॉर 2 purposes. One is if we reach to this position, we will use it for the defense. I was having my colleague with me, Dr. Dinesh.
he got the project on this. He got just some funding on this. I guess like 20-30 lakhs we got. Then we are making this for defense. अभी defense में क्या हो रहा है? They are having high-end drones, as we have seen. Like हर किसी जगह पे वो पहुंच जाते हैं वो ड्रोन. But एक compatible वो छोटा सा ड्रोन अभी भी उस लेवल का उनको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, जो कि हम ट्राई कर रहे हैं बनाने की. और जो अगर डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, they can send it like 50 drones at a time and have a proper visualization of 50 drones. You got my point? So 350 or 450 into 50 कितना हुई? कितना ही हो गया. और जो डिफेंस यूज कर रही है वो लाखों में ड्रोन्स आते हैं. So if they send 50 to any place, तो अगर वो सारे भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक डिफेंस का उतना लॉस नहीं होगा. That's what we are cutting out. Then यहाँ पे उनके बोर्ड में भी देखिए ये जो ड्रोन है ना, यूजुअली चाइना मैन्युफैक्चर करता है. जितने भी आप PCBs देखोगे यूजुअली या तो ताइवान करेगा. Why? Because they are having TSMC. TSMC is Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Usually like I guess 90% of the semiconductor is delivered from them only. 90% of the semiconductor through the globe. So उनके पास उतनी sophisticated technology है कि वो छोटे छोटे PCBs को fabricate कर सकते हैं. यहाँ पे सबसे बड़ा challenge क्या है? यहाँ पे PCB fabrication इंडिया में उस हिसाब से नहीं होती है. PCB manufacturing उस हिसाब से as you have seen in this like make in India की कोशिश कर रहे हैं लोग ड्रोन बनाने की. What is that? अभी का जो यहाँ पे सीन है, अभी 100% अभी तक कोई भी मेक इन इंडिया ड्रोन नहीं बना है. This is a pure reality. What we are doing here majorly, I have heard some company has reached to 60%, but usually what we do, we purchase the equipment from China, assemble it, make in India. But actually it's not made in India. It's like we are just assembling the part and giving it the end product. वो assembling part हम करते हैं. Then here we are having ESP8266. With that we are having some, I cannot disclose much about this product because we have not patented yet. Still to make you understand, I will just draw out something. क्योंकि आप जैसे छोटे छोटे यंग बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, बहुत मेहनत की है, एंड वी वांट कि उनका नाम पेटेंट में आ जाए. सो हियर वी आर हैविंग सेपरेट मोटर ड्राइवर्स. मान लीजिए एक ही मोटर ड्राइवर हमारे पास है जो कि 4 मोटर्स को कंट्रोल करता है. ये एक मोटर हो गया हमारा, ये दूसरा मोटर, ये तीसरा मोटर और ये चौथा मोटर. ये किसके साथ कनेक्टेड है? पहले तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, ESP8266 चिप. अगर आप वो देखेंगे ऑनलाइन प्राइस वो 350 की. देन यू विल से सर आपने तो ये कहा, बट वी आर ओनली यूजिंग द IC. We are only using the IC and we will make our own PCB here in Srinagar in upcoming months, I guess, because we got the PCB manufacturing that whole setup. We are getting in months, so maybe from next month we will start fabrication. So here उसके बाद motor driver L293D. क्या होता है, जैसे कि एक IC से हम डायरेक्टली एक मोटर को नहीं चला सकते. इतना क्लियर है? क्यों? क्योंकि एक IC से एक स्पेसिफिक करंट हमें पास नहीं होता है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने परसों LED लगाई थी, किसी को लग रहा था वो यहाँ पे ग्लो कर रही है? ऐसे तो विजुअलाइज नहीं हो रहा था. क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक वोल्टेज तो दे रही थी बट एक स्पेसिफिक करंट हमें प्रोवाइड नहीं कर रही थी जितना उस LED के लिए रिक्वायर था. सिमिलरली यहाँ पे जो हम मोटर्स यूज कर रहे हैं, वोल्टेज तो वो दे रहा है हमें, 5 ही वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट पे भी मोटर चल जाएगा. बट द सीन इज जो स्पेसिफिक करंट हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड नहीं होता है यहाँ पे.
तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यूज, एक आईसी का नाम है L293D, इस आईसी का नाम है। एक तो हमने कौन सी आईसी यूज की, ESP8266, उसके साथ क्या कनेक्ट किया, L293D, और उस L293D के साथ हमने क्या कनेक्ट किया, अपने मोटर्स जितने भी है। और फिर हमने इस ESP8266 में क्या काम किया, इसमें एक स्पेसिफिक कोड डाला जो कि हमारे वाईफाई के थ्रू एक वेब सर्वर हम बना रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग दिस एप्लीकेशन टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना भी लोगों के लिए वो एक सरदर्द बन गया है। फिर परमिशन दो, बाकी चीज़ें दो, वो आपके कॉन्टेक्ट्स दे रहे हैं, वो आपकी पिक्चर्स दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का वो एक। और जब ड्रोन्स की बात आती है तो यूजुअली पीपल थिंक कि चाइनीज़ कंपनी है, और चाइना तो डेटा लूटने में मशहूर है। As India has banned so many Chinese apps now, like there was a biggest app like this TikTok आप लोग चलाते थे ना, वो बैन हो गया just because of data stealing के लिए। For that we are making an web page जो कि IP एड्रेस पे चलेगा। एक हाँ आपने बोला ना चाइना ये डेटा चोरी करता है चाइना, वो क्यों करते हैं? वो क्यों करते हैं कि डेटा ही तो चाहिए उनको, दैट इज सेपरेट थिंग। उसके लेट्स से इंडिया की ऐप चलाएंगे, हम तो उसमें भी डेटा ही दे रहे हैं ना, वो क्यों नहीं दे रहे? दिस कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी इशू, national security issue. It's not about your thing or mine thing. It's about national security issue. And if you are saying Chinese apps like they don't use WhatsApp, they don't use the Facebook there. Have you visited China? आप एक बार विजिट कीजिए चाइना, आप देखिए शंघाई में क्या क्या टेक्नोलॉजीज है और वो कैसे अपनी टेक्नोलॉजी अपने कल्चर को आगे, वहाँ पे आप अगर एप्स भी देखेंगे चाइना की एप्स भी, वहाँ की लैंग्वेज ही चाइनीज होती है। सो जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट, वो उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा है, दैट्स व्हाई दे आर एट दैट लेवल। एंड वी शुड फोकस ऑन आवर कल्चर आल्सो, वी शुड नॉट फॉरगेट आवर लैंग्वेज, वी शुड नॉट फॉरगेट आवर थिंग्स जो कि कल्चर में है। उनको भी टेक्नोलॉजी की एडेप्शन को भी साथ ले जाना है और जो हमारा कल्चर है उसको भी साथ साथ ले जाना है। Here we were discussing about this IP address, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और जब आप उस जो हम ड्रोन बना रहे हैं उस ड्रोन को स्कैन करेंगे, आप एक वेब पेज पे पहुंच जाएंगे, सिंपल वेब पेज जहाँ पे 4 बटन्स होंगे, अप डाउन राइट लेफ्ट फॉरवर्ड 6 बटन्स होंगे, जैसे कि आपके ट्रांसमीटर में जॉयस्टिक होती है। सिमिलरली वहां पे भी हमने कुछ कमांड लिए हुए हैं और उसकी कोडिंग कहां से वो लेगा, वो ऑलरेडी फिक्स अप होगी किसमें, हमारे ESP8266 में। इसमें कोई डाउट है? आई एम हियर, थोड़ा सा डाउट। जो वेब पेज होस्ट कर रहा है वो ESP8266 कर रहा है ना, हाँ तो उसमें उतनी रैम क्यों कर पा रहा है? हाँ, I guess 19 KB we are having here, 90 KB are enough. ESP के भी फिर different versions हैं, ESP01, ESP018266, ESP028266। जो हम यूज कर रहे हैं उसमें तो है specific and we have tried and we have flight it but it's 750 right now. जो वो ड्रोन है ना जो आप लोग बना रहे हो उसमें वीडियो ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है, वीडियो वो दिखा रहा हूँ। Okay, I'm in class. Yeah. So after this, we are attaching a camera, जो कि मैंने कहा this mainly for defense purpose. So वो कैमरा लगाने के बाद वो कैमरा किसके साथ कनेक्ट होगा, वो कैमरा होगा हमारे ESP8266 के साथ कनेक्टेड, क्योंकि ये बोर्ड कैमरा की प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट करता है। ESP32 also accept the camera programming and ESP8266. ESP32 will come the integrated
कैमराज ऑल्सो। अगर आप लोगों ने देखा होगा ESP32 के जितने भी चिप्स आते हैं वो वाईफाई कैम के साथ ही आते हैं। बट यार वी आर अटैचिंग स्मॉल 2 MP कैमरा। Just we just need to locate a person here और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना क्लियर है? And here we are having a separate display here, जो कि जिसकी ट्रांसमिशन भी कहाँ से होगी? वाईफाई के ही थ्रू होगी, क्योंकि यहाँ पे RF का कोई इसमें लेटेंसी आती होगी। हाँ इसमें लेटेंसी आती होगी कि आप 5 गीगाहर्ट्ज पे करते हो। 5 GHz इसमें नहीं आता है। सर जो फ्लाइट कंट्रोलर्स में जो आप लोग MPU 6050 या हाँ MPU 6050 करते हो, और उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर किसका? उसमें फ्लाइट कंट्रोलर सॉफ्टवेयर किसका? नहीं, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है यही कोडिंग जो मैं कह रहा था, प्रोग्रामिंग। वही मैंने कहा, मैं आप उसी चीज पे पहुंच गए जो मैंने कहा कि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अच्छा, वो आप लोग हाँ, वो प्रोग्रामर्स ने, वो आप भी कर सकते हो, उतना बड़ा नहीं है इशू। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब चीजें खुद से यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द AI। ChatGPT is there, black box AI is there. Usually for coding we use black box AI. So वहाँ से आप उसको एक prompt अच्छा सा देंगे, और prompt engineering का भी फील्ड देख लो कितना बड़ा हो रहा है। And it's not necessary कि नहीं, जैसे कि आपने अभी बोला कि आप लोग प्राइस कम कर रहे हैं कि मेरे ड्रोन कम प्राइस में बने, और उसकी तो बेसिक नीड्स सारी खत्म हो रही है। लाइक आप बता रहे हैं कि आप 450 ले रहे हैं फॉर इंस्टेंस, आप उसमें मेनली क्या यूज करेंगे फॉर प्रोग्राम जो स्टोर है प्रोग्राम्स? आर्डिनो फॉर इंस्टेंस, आर्डिनो अकेला 450 का आता है। ESP8266। ओके, आपने वो भी यूज किया। फिर बाकी चीजें स्ट्रक्चर उसका वो भी खत्म हो रहा है, बैटरी लाइफ, range and all that. I will tell you. That's good thing. ESP8266 हमें पड़ रहा है 40 रुपीज में। इसकी IC हमें कितने में पड़ रही है? 40 रुपीज में। One battery we are using LiPo battery of 4400 mAh। ये पड़ रही है हमें 150 है। मोटर ड्राइवर का जो हमें पड़ रहा है, बिकॉज वी आर बाइंग इट ऑन लार्ज स्केल, तो हमें आपको प्राइस वेरी हो जाएगा व्हेन यू चेक द ऑनलाइन प्राइस। ये अभी हमें पड़ रहा है मोटर ड्राइवर, ये भी 150 का। और उसके बाद जो मोटर बचता है, मोटर 4 हमें पड़ रहा है 200 में। उसके बाद क्या बचता है? और कुछ तो बचता होगा या फ्रेम ही मैं असल में हम वेरी कर रहे हैं। फ्रेम वी आर यूजिंग has 3D printing technology in which we are using ABS Pro material। 3D printing क्या होता है? 3D print जैसे कि आप लोगों ने 2D print देखा होगा, किसी भी पेज पे प्रिंट करना होता है, और जैसे अगर हमें एक कैप प्रिंट करनी होगी, कैप की सारी बनानी होगी, तो वी विल यूज द मेथड ऑफ 3D printing। वो आप लोगों ने शायद देखा है। सर इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपके पास 4 कंप्यूटर, उनका क्वेश्चन कंप्लीट करें पहले। हाँ, तो यहाँ पे ये 100 तक का आ रहा है। आई एम जस्ट मेकिंग द रफ प्राइस, आई डोंट नो एक्चुअली। देन कैमरा $300 7। This is what we are trying to। और वो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे if we go with an injection molding process,
जैसे कि हम 3D प्रिंटिंग का यूज कर रहे हैं, अगर हम इंजेक्शन मोल्डिंग की मदद से करें तो इट कैन रिड्यूस अप टू, क्योंकि इसमें उतना मटेरियल यूज नहीं होता है, क्योंकि इट कैन रिड्यूस अप टू 20 रुपीज। और जो हम यहाँ पे अभी कैमरा पे भी बात चल रही है, दिस कैन रीच टू 60 रुपीज। दिस बैटरी here, this can reach to the 100 rupees. There are research teams for that, like जो finance का भी देख रहा है और जो technicality का भी देख रहा है। There are different groups जो different चीजों पे। आपने बोला ये मेन मिलिट्री पर्पस के लिए, फॉर इंस्टेंस जो है मिलिट्री पर्पस वहाँ कॉस्ट कम होगी, जितना इसमें कॉस्ट कम करेंगे वो तो रिस्क भी बढ़ेगा ना उतना इस पे फिशिंग अटैक्स का भी। ठीक है, फिशिंग अटैक्स का वो तो वहाँ सारा रेट खत्म होगा। हाँ, बाकी लोगों को मैं समझाऊँ फिशिंग अटैक क्या होता है। मैं इन सीरियस फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी। तो फिशिंग अटैक एक्चुअली होता है जैसे कि किसी ने एक फेक वेब पेज बनाया और वो फेक वेब पेज का यूआरएल आपके पास आ गया, यू गेट टू नो कि फॉर एग्जांपल आपके फेसबुक का लॉगिन पेज है, उसी के जैसा कोई यूआरएल आपके पास आया, आपने क्लिक किया, वहाँ पे आपको लगा कि गेट 100 यूजर्स। जब हम फिशिंग अटैक्स देखते थे 2010 में, आई डिड माय फर्स्ट फिशिंग अटैक, आई वाज इन क्लास सेकंड आई गेस। सो दैट टाइम वी डिड फिशिंग। उस टाइम पे फिशिंग का सीन अच्छा था, किसी को नहीं पता था। सो जब किसी को नहीं पता होता है तब चीज़ें ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो उसमें क्या होता है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, उस टाइम पे वी वर गिविंग 100 फॉलोअर्स, आपको 100 फॉलोअर्स और सब 100 फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे, और भी कुछ उसमें ये हाँ लाइक्स का, या यूजुअली वी वर डूइंग ऑन लाइक्स एंड कमेंट्स, आपको लाइक्स एंड कमेंट्स मिल जाएंगे एंड यू जस्ट लॉग इन। और जो विक्टिम होता है, विक्टिम हम कहते हैं जो जिसके पास लिंक पहुंच जाती है, जब विक्टिम उस पर क्लिक करता है, लॉग इन करता है, तो वो उसके एडमिन पैनल पे वो डिटेल्स आ जाती है, और इसका लॉग इन वहाँ पे या तो ब्लैंक पेज आएगा, या तो अगर उसने रिडायरेक्ट किया होगा फेसबुक के असल यूआरएल पे, उसको नए से लॉगिन करना है, और जब वो नए से लॉगिन करेगा उसका लॉगिन हो जाएगा, लेकिन लाइक्स वाइक्स कुछ नहीं मिलेंगे उधर पे। तो ऐसा सीन होता है फिशिंग का। तो ही वाज सेइंग कि अगर इसमें फिशिंग हो गई, बट यहाँ पे एक बेसिक चीज आप बोल गए, वी आर यूजिंग, आई सेड डिफेंस इज हैविंग मल्टीपल ऑप्शन। यहाँ पे क्या मसला होता है कि लॉस का मसला होता है। अगर 350 में बन गया 50 ड्रोन, 50 ड्रोन में कितना फिशिंग हो जाएगा, कितने जो मैं यहाँ पर हमने ड्रोन्स बनाए फॉर अटैक पर्पस, इसी साइड पे नहीं है, दिस नॉट फॉर अटैक, आई एम जस्ट टेलिंग फॉर दिस पर्पस, दिस जस्ट फॉर सर्वेलेंस। एग्जाम्पल के लिए हमने अटैक पर्पस के लिए कुछ ड्रोन्स बनाए, जस्ट 150, एंड उनमें हमने उतना ही गन पाउडर यूज किया जितना मतलब जितना लोड सम कर रहा है, इट इज एनफ टू डिस्ट्रॉय अ पर्सन और अ बिल्डिंग। फॉर इंस्टेंस मैंने फिशिंग अटैक करा, जिस हमने ए पोजीशन से लॉन्च किया बी पोजीशन पर अटैक करा, मैंने उसका पाथ ट्रैजेक्टरी चेंज की, मैंने ए की जगह जो लॉन्च करा मैंने उसी पे रख दिया वापस, वहाँ तो सारा खत्म हो गया। But for that is for you are saying attacking purpose or that gunpowder वगैरह. For that we are having RF. तो RF में usually आप ऐसे hacking नहीं कर सकते, phishing उतना easy नहीं है. There are like you can jam the signal. Usually you can jam the signal. अगर आपने देखेंगे भी होंगे there are jammers for Wi-Fi. And this RF एक बड़ा सा बॉक्स होता है, गन टाइप होता है, और जब वो प्लेस करते हैं ड्रोन की तरफ, और ड्रोन एक स्पेसिफिक मोमेंट में गिर जाता है, लेकिन वहाँ पे फिशिंग का को उतना बड़ा ये नहीं है। एंड सी लाइक जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाए, देयर आर लूप होल, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स है हमारे पास, दैट कैन बी हैक्ड। तो एक इंसान की सिक्योरिटी का क्या हो गया फिर? देयर आर जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी जाएंगे उतना साइबर सिक्योरिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे पहले उतनी साइबर सिक्योरिटी, आजकल आपका डेटा है मोबाइल में, आप कहोगे हमें मर जाए मोबाइल अपने पास ही रहना चाहिए, मोबाइल का डेटा सिक्योर रहना चाहिए, उतनी इम्पोर्टेंस आजकल डेटा की बन गई है। सो दैट मीन्स कि साइबर सिक्योरिटी भी अब जा रही है, और लूप होल्स भी ऑब्वियसली जितना एडवांस टेक्नोलॉजी जाएगी लूप होल्स भी उतना ही आपको थ्रेटन करेगा।
इतना इजी नहीं होता है। When you reach to the phishing के बाद brute force attack पे आप जाएंगे। Brute force attack में like you have to make a dictionary, then that dictionary will जब brute force का siege start हो गया था, it was I guess flood year 2014. That time we were doing brute force, and in that you have to make a directory, and from that directory a specific password was going to the Facebook, and it was for example 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे पासवर्ड्स होते थे। बहुत उसमें लाखों में पासवर्ड्स होते थे, वो एक एक करके ट्राई करता था, और जो एक स्पेसिफिक होता था मैच हो जाता था और आपका अकाउंट ओपन हो जाता। बट नाउ व्हाट इज द सीन, अगर आपके 2-3 पासवर्ड ही बंद हो गए तो फेसबुक क्या करता है, वो बंद हो जाता है, या कहता है 12 आवर्स में, या कहता है कोई और मेथड ट्राई कीजिए, ऐसा सीन होता है। बट स्टिल देयर आर सम लूप होल्स जो कि आई हाँ यू कैन वर्क इन दैट एरिया, हाँ you can work in that area, see how much scope is there. You are a visionary person, you can see the scope, go ahead, do the work in cyber security. There are so much things. जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी जाएगी, आप ड्रोन्स की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, फोन्स की बात करें, अभी तो फोन्स में भी ड्रोन्स आने लगे। If you are seeing, yesterday I saw a video, यहाँ से ओपन करता है, यहाँ से कैमरा ऊपर जाता है और यहाँ से आपकी पिक्चर क्लिक होती है, छोटा सा एक ड्रोन बनाया उन्होंने, और फिर आई गेस सैमसंग हैज मेड दैट, सो वो वापस है। सो इन दैट लाइक यू आर अ विजनरी पर्सन, यू कैन गो इन दैट, we can have a better discussion like after this session. As we are AI students, our goal is to be AI is depend on data. जितना data होगा उतना AI बढ़ता जाएगा। That's why I asked this question. इसके तो कंट्रोल भी बहुत है। इसके हैं, हर किसी टेक्नोलॉजी के होते हैं। It's nothing. If I give you the example of my technology in which I have done research, you will be like, oh my God, this is possible. I have did the research on the brain computer interface for almost 5 years, and in which we were tracking the brain signals from the patients or from the people, and from those signals we were operating some machines in a whole area. और जब वहाँ से ब्रेन से वेव्स आती है, हर किसी ब्रेन वेव का एक स्पेसिफिक सिग्नल, यहाँ एक स्पेसिफिक ए वेव एक काम करती है, बी अल्फा बीटा, वो टेक्निकलिटी को छोड़ के मैं आपको और वेव देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाथ बंद भी कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्पेसिफिक वेव निकल रही है, और हाथ खोल रहा हूँ, यहाँ पे एक स्पेसिफिक वेव निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हम वेव्स को बाहर ले रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर व्हाट आई एम सेइंग, आपके सर में कैप लगी होगी, आप वहीं से जो कॉर्पोरेट्स है वो आपको कंट्रोल भी कर सकेंगे। हाउ? क्योंकि ब्रेन से जो सिग्नल जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। इतना क्लियर है, बेसिक मेरे बाप को भी पता है, इतना क्लियर है ना। सो वो माइन्यूट से सिग्नल्स, अगर किसी स्पेसिफिक एक्शन के स्पेसिफिक सिग्नल्स है, जब आपके सिर में चिप इंटीग्रेट होगी, वहां से जब वो सिग्नल्स भेजेंगे, एक स्पेसिफिक सिग्नल भेजेंगे, वो स्पेसिफिक एक्शन हो जाएगा। अगर वहां पे देखो पॉसिबिलिटीज कितनी है, और लोग यूज करेंगे क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आएगी। एलन मस्क काम कर रहे हैं न्यूरोलिंक, but they are using inventive technology, as I said in previous session में, inventive technology is something जिसमें आपको सर्जरी वगैरह करनी होगी। और I have worked on some basic non-inventive technologies, कल के ऊपर से ही हम डेटा को ले रहे थे। Is this clear? हम थोड़ा सा आगे जाए। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन, जो इतना डीप कोई डीप नहीं होता, सब इसी की चल रहा है यहाँ। जो मतलब यूजुअली ड्रोन्स आते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल होता है, तो इनमें आप लोग कैसे कर रहे हो हर मोटर की स्पीड को कंट्रोल ताकि हो जाए? इसमें भी स्पीड कंट्रोल लगे, which I didn't disclose it। इसमें भी last time I said that like yes speeds are there, but that is a part of like again इसका भी फिर exceptional cost रहेगा। हाँ। वो ये जो हमारे पास
इसके बाद इधर तक हमने देखा था यहाँ पे एमपीओ होता है, एमपीओ के साथ क्या होता है, एक स्पीड कंट्रोलर लगा होता है, फिर ये हट जाएगा। स्पीड कंट्रोलर हर किसी मोटर का अपना होता है। फिर यहाँ पे मोटर लगा होता है, स्पीड यहाँ पे अलग मोटर। ये किस लिए हम यूज करते हैं स्पीड कंट्रोलर? क्योंकि जब इस ड्रोन को आगे जाना होता है, परसों मैंने कहा था, तो जो डायगोनल वाले मोटर्स है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब फ्लो करेंगे, ज्यादा तेज घूमेंगे, वो वाले स्लो घूमेंगे, तो वो जो ड्रोन है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा। और जो अपोजिट वाले एक स्पेसिफिक डायगोनल में स्पेसिफिक स्पीड में ज्यादा मूव करेंगे, तो वो डायगोनल चेंज करेगा। ऐसे ही डायगोनली मोटर्स जैसे जैसे फ्लो करेंगे उसी हिसाब से हमारी डायरेक्शन। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि हर किसी मोटर की एक स्पीड वेरिएशन है जिससे हमें ये ड्रोन कंट्रोल हो रहा है। फॉर दैट वी आर हैविंग these ESPs are there. इसके अलावा in our drone we are also using ESPs, but उसका separately डिटेल मैं आपको दे सकता हूँ। For example, we are having drone here. We are having an orchard here. Orchard, trees, वगैरह. I'm not good at diagram, so handwritten work come here. That's why I don't use PPTs now. That's why I don't use anything now, so that my this weakness will overcome. जैसे कि हमारे पास थोड़ा सा AI की तरफ जाएंगे, you all are AI students, और हमारा थोड़ा सा यहाँ पे AI का ही ज़्यादातर इन्होंने बताया था। So अगर हमारे पास कोई ऑर्चर्ड है, अब इस ड्रोन तो समझ आया चलता कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है, कौन सा कंपोनेंट किस चीज़ के साथ इंटीग्रेटेड है, बैटरी कब काम करेगी, या उसके प्रोग्राम्स कैसे होंगे, ट्रांसमीटर से करेगा, वाईफाई से करेगा, वो सेकेंडरी सवाल है। समझ तो आया ना? इसके बाद हमारे पास एक ऑर्चर्ड है। ऑर्चर्ड के यहाँ पे ट्रीज में लीव्स के बहुत सारे कलर्स होते हैं। अब अगर कोई ट्री बीमार है, आई एम नॉट दैट मच इन एग्रीकल्चर, आई सेड यू आई कैन गिव द टेक्निकल डिटेल्स मच। सो एग्रीकल्चर में इसमें क्या होता है, प्लांट्स में अगर किसी पेड़ में बीमारी है तो उसके लीव्स में कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस आएंगे, वो कुछ शो करेगा। फॉर एग्जांपल या तो डॉट्स करेगा शो, या तो उसका कलर चेंज होगा, या तो उसी हिसाब से चीज़ें होंगी, कुछ ना कुछ शो। जैसे कि इंसान अगर बीमार होता है, हमारे पास हमें फीवर हो जाता है जो कि एक सिम्टम होता है, वैसे ही सिम्टम्स जब से पेट में बीमारी होती है वैसे ही सिम्टम्स वो यहाँ पे भी शो अप कर सकता है। अब यहाँ पे क्या हम करेंगे काम, AI को इंटीग्रेट करेंगे ड्रोन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, खाली AI में कौन सी प्रोग्रामिंग यूज, सिंपल बेसिक प्रोग्रामिंग। अब अगर हमने AI होता क्या है, यू आर AI स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, किसी को ट्रेस करना किसी चीज पे ताकि वो बात आगे फ्यूचर में डिसीजन ले पाए और बेस्ड ऑन दैट डेटा। हाँ, बेस्ड ऑन दैट डेटा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वो डेटा इसमें फीड करेंगे। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स की जो बहुत सारी डिजीजेज है और उसके जो सिम्टम्स है वो भी हम ऑलरेडी इसमें फीड अप करेंगे।
फॉर एग्जांपल येलो लीफ के लिए XYZ ये है, और ग्रीन लीफ में अगर वाइट स्पॉट्स आए उसके लिए ABC डिजीज है। और वो इस मशीन को अब ऑलरेडी पता है, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी मशीन हमारी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। इतना क्लियर है ना? एंड लेबलिंग आई गेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेबलिंग वगैरह के डीप लर्निंग का बेसिक। सो जैसे भी आप लेबलिंग वगैरह करते हैं, लीव्स में देखते हैं वो सिम्टम्स वगैरह, मान लो उसकी पिक्चर्स हमने डाल दी, बहुत सारी पिक्चर्स। अब जहाँ पे भी वो डिजीज होता है ना, वहाँ पे हम जब आप डीप लर्निंग पढ़ेंगे वहाँ पे आपको लेबलिंग वगैरह करनी पड़ेगी। और उस लेबलिंग अभी के टाइम पे क्या आ रहे हैं, ऑटोमेटिक लेबलिंग सम सिस्टम्स आ गए हैं जो जिन पे आपको लेबलिंग नहीं करनी पड़ती है। सो यूजुअली जब हम प्रीवियसली करते थे तब हमें इंडिविजुअली लेबल करना पड़ता था कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, और वो डेटा सेट अभी है ना, कैगल वगैरह आपको प्री डिफाइंड वो डेटा सेट्स मिल जाते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप खुद से अपना बनाएंगे देन यू हैव टू डू लेबलिंग, अदरवाइज इफ यू आर यूजिंग सम प्रीवियसली देन यू डोंट नीड टू गो विद लेबलिंग। सो फॉर एग्जांपल आपने 2-4 पतों के लिए लेबलिंग की, देन वो इंटेलिजेंस किस मशीन में डाल दी, इस ड्रोन में डाल दी। अब ये ड्रोन A पोजीशन से B पोजीशन में गया, A पोजीशन से B पोजीशन में गया। सो यहाँ से इसने हर किसी जितने भी पेड़ थे उनको मॉनिटर किया, और उन मॉनिटरिंग कैसे की, उनको अपने डेटा के साथ कंपेयर किया। इसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा किस पेड़ में क्या है। हर किसी पेड़ की अपनी अपनी एक नंबरिंग होगी, जो कि उस पेड़ में हाई एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। कैसे फ्यूचर में AI की इंटीग्रेशन, मशीन लर्निंग या AI की इंटीग्रेशन ड्रोन्स में होगी, फिर वो एग्रीकल्चर में। एज सच आई डोंट थिंक कि अभी के टाइम पे ऐसा कुछ होता होगा यहाँ कश्मीर में। मे बी चाइना में मतलब वो पहुँच गए होंगे, चाइना में पहुँच ही गए होंगे, वो कुछ भी कहीं पे भी पहुँच जाते हैं। सो A to B पोजीशन पे जाना है इनको। सो इसमें ऑलरेडी डेटा सेट हमारे पास है इस बीमारी से। तो जब वापस आएगा वहाँ से हम डेटा लेंगे, वो हमें स्पेसिफिकली बता सकता है कि पेड़ नंबर 15 में ये स्पेसिफिक बीमारी है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे हम A to B पोजीशन ऐसे ले रहे हैं। अब ये सोचो कि किसी के पास 200 का नाम है, किसी के पास 400 का नाम है, एक एप्लीकेशन आ गई समझ इसकी। अब हमारे पास वो पेड़ तो खराब है, उसमें कोई डिजीज है। अब और एक एप्लीकेशन देखते हैं वो एप्लीकेशन कैसे यूज हो सकती है। उसमें क्या हम कर सकते हैं, जिस पेड़ में ये बीमारी है, जैसे कि एक सर आए थे पिछली बार, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर बसंत आए थे, तो उनकी एक कंपनी है जो कि एक ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है। सो वो ड्रोन्स क्या करते हैं, स्प्रेज करते हैं बहुत सारे ट्रीज पे। तो स्प्रे दवाई वगैरह छिड़कना इसी को कहते हैं स्प्रे। मुझे ज़्यादा नहीं है एग्रीकल्चर का पता, मान लीजिए ये स्प्रेइंग वगैरह का काम करते हैं। बट अब जिस पेड़ में बीमारी होगी उसको भी हमें स्प्रे करना है। That drone can be used in if we integrate AI in that drone also, so that can be also used। उसमें क्या होगा, किसी के पास 200 कनाल है, उसमें 200 पेड़ डिजीज है। अब उन 200 पेड़ों में हमें क्या करना है, स्प्रे करना है। अब आप देख लीजिए 200 कनाल को घूमना, फिर उनमें देखना कि किस पेड़ में बीमारी है, और उसके बाद उस पेड़ पे स्प्रे करना, वहां तक ले जाना, कितना बड़ा हेक्टिक है। या मान लीजिए 200 कनाल में कितने पेड़ उग सकते हैं, मान लीजिए 100 कनाल में कितने पेड़ उग सकते हैं एक कनाल में, कौन सी वैरायटी, वही भी कौन सा फर्क पड़ता है। 100 ले लो एक कनाल में, 150 हाँ 100, एक कनाल में 100 रख लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास 100 कनाल है, आप कितने हुए, 10,000 पेड़। अब मान लीजिए इस 100 कनाल में खाली एक पेड़ है जिसमें बीमारी है। अब इस फार्मर के लिए कितना हो सकता है ये, एक तो मुश्किल, तो फिर जाओ टाइम दो, 100 कनाल को घूमो और फिर देखो कौन सा पेड़ है। बट अगर हमने स्पेसिफिकली ये ड्रोन को रखा यहाँ पे, इसको ऑन किया, इसमें वो डेटा ऑलरेडी फीडेड है, और ये इस 100 कनाल को घूमेगा,
पहले मॉनिटर करेगा इस पेज नंबर 78 में या इस कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं इसको, जीपीएस भी लगा होता है। जो उनका ड्रोन है उसमें जीपीएस XYZ कोऑर्डिनेट्स पे जो पेड़ है तो उसमें ये स्पेसिफिक बीमारी है, तो उस स्पेसिफिक बीमारी के लिए वो स्प्रे उसमें डाल सकता है और वो ड्रोन खुद से उठ के वहां पे जा सकता है और वो स्प्रे कर सकता है। कितनी बड़ी एप्लीकेशन है। अब मान लीजिए किसी के पास 1000 कनाल है, ऐसे भी लोग हैं, बहुत बड़े फार्मर्स हैं ना इंडिया में, बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं, 200 कनाल 300 कनाल 400 कनाल भी होते हैं आज उनके पास। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप एक ऐसा यूनिट भी क्रिएट, दिस इज MSME प्रोग्राम, अब मैं थोड़ा सा बिजनेस पे फोकस करता हूँ। अगर आप एक बिजनेस अप्रोच से भी देखेंगे एज एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन बाय अ ड्रोन, you can put out this integration, AI integration in that drone, and then you can give the service of this specific thing to the farmers. We will find out which plant is having the disease and we will find out it and we will put the spray on it just for some whatever the charge you take from that. Is not clear? मतलब दो ड्रोन्स के बीच में ऐसे कम्युनिकेट करा सकते हैं मतलब इजीली करा सकते हैं, उसमें ना कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस पिछली बार एक टीचर आए थे तो उन्होंने बोला था कि ड्रोन जो है वो टॉप सर्विस का लेता है, तो हमें एक्चुअली पता नहीं चलता कि मतलब जैसे लेटरली भी कौन कौन सी डिजीजेज है तो वो नहीं दिखता। तो मतलब जैसे कि RGB कैमरा उसमें यूज़ होता है तो वो सिर्फ टॉप व्यू लेता है, लेकिन लिडार कैमरा जो है वो इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो अगर हम ऐसा करें कि फॉर इंस्टेंस लिडार कैमरा जो है वो डिटेक्शन मॉनिटरिंग पर्पस के लिए लगाए और दूसरा जो ड्रोन है वो लाइक लिडार जो है वो फॉर इंस्टेंस डिटेक्ट करेगा कि ये डिजीज़ है, एंड देन सेकेंड ड्रोन जो है उससे कम्युनिकेट करके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन उसका अप्लाई करेंगे। उनके कहने का ऐसा मतलब है, एक टीचर आए थे, उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकता क्योंकि ये बड़ा होता है, और यही कहा था ना उन्होंने बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ड्रोन भी यूज कर सकते हैं, उसमें इन डेप्थ कैमरास का यूज करके ये पहले ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट दैट, देन वी कैन यूज द सेकंड ड्रोन। You are an entrepreneur, you can buy the drones and you are a female, you are having 90% of discount on from the Ministry of MSME. So वो आप कर सकते हैं 90% यहाँ से I mean ये बड़ा वाला ड्रोन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये A प्लांट को रखते हैं, B प्लांट को रखते हैं, C, D and E F प्लांट को रखते हैं, एंड फॉर एग्जांपल दिस C प्लांट इज हैविंग डिजीज। सो पहले A ड्रोन X से हमें पता चल गया कि प्लांट C में डिजीज है, और ड्रोन Y से हम इस C में इजीली कम्युनिकेट करवा सकते हैं। It always depends upon your logic, it always depends upon your programming. Any more question? There are no doubts. Anyone who is having the interest in doing project, they can visit me there. We are having depth cameras also, we are having drones also, we are having high-end AI technology there in our center also. You can visit there. I am there for you, for BTech, not for MSME. For BTech holders, I am there for you. We can do wonders together. We are having Ministry of MSME, Sanat Nagar.
Jetson boards there, Jetson Xavier is there, Raspberries are there, almost 150, 160 Raspberries are there. You can come work, do whatever you want to do. This is R&D और बनाने में production में. Don't think this I am talking about production. Once the R&D is done ना, there are specific teams. देखो बेटा क्या काम होता है, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं और उस प्रोजेक्ट के बारे में 4 फील्ड्स आते हैं और उन 4 फील्ड्स को हमें टैकल करना होता है. फॉर एग्जांपल बैटरी यहाँ पे है, बैटरी के पावर सिस्टम अलग से टीम है और यहाँ पे 3D प्रिंटिंग है, 3D प्रिंटिंग के लिए एक डिज़ाइनिंग टीम अलग से है और प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर साइंस की टीम अलग से है. एंड इट्स नॉट कंप्यूटर साइंस के, अब तो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज आए हैं एज यू आर इन AI इन एग्रीकल्चर और सिंपल AI. सो यू सी AI कहाँ पे था, एग्रीकल्चर कहाँ पे था, अब तो मिक्स हो रहा है सारा कुछ. कितना कॉस्ट और क्या? तो ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है ना हमने, हम पैसे पहले देते हैं, काम बाद में करते हैं. डिफेंस के लिए होगा, डिफेंस में वो सर्विलेंस आते हैं ना. हाँ सर्विलेंस और कैमरा का वो तो बोला ये बोल रहे हैं जो सस्ता वाला होगा वो क्वालिटी उसकी अच्छी होगी. जब कौन सा क्वालिटी चाहिए हमसे, तो क्वालिटी नहीं चाहिए. नहीं क्वालिटी जो चीज़ चाहिए वो उसको मिल जाएगी. हल्का सा 5 MP या 2 MP का कैमरा बहुत होता है. हम क्यों नहीं सोलर कैपेसिटर्स की बात करते हैं ड्रोन की? क्यों नहीं करते? सोलर तो आएगा ड्रोन में, सोलर आएगा ड्रोन में. सोलर पैनल्स कैनोपी के ऊपर As the same I said in like why we are not using ESP direct with the motors. Why? Because they are not giving us specific. The same thing will be with the solar. And the solar में क्या काम होता है? सोलर में एक तो वेट भी इंक्रीज हो जाएगा. करंट हम चाहते हैं वो प्रॉपरली, बट विद एडवांस टेक्नोलॉजी क्या होगा वो थोड़ा सा अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे, देयर विल बी मल्टीपल स्टेशन, चार्जिंग स्टेशंस जिन पे सोलर लगा होगा. ऐसा कंसेप्ट हो सकता है और पॉसिबली होगा जब ड्रोन्स का वो ड्रोन डिलीवरी सिस्टम जब आएगा ना. ड्रोन डिलीवरी सिस्टम में फॉर एग्जांपल देयर वाज अ स्टार्टअप हियर, I forgot his name. They are having the startup on this medicine delivery and they are doing something in delivery or surveillance. जब ऐसा डिलीवरी में जब ज़्यादा होगा ना, they might have some. Amazon के पास बजट का टेंशन नहीं है, फ्लिपकार्ट के पास बजट का टेंशन नहीं है. They can make a separate charging station, जिन चार्जिंग स्टेशन पे वो ड्रोन गिरेंगे और वहाँ से चार्ज होके एंड इन चार्जिंग वी आर नाउ एडवांस, वी डोंट नीड कनेक्ट टू द वायर. ह्यूमन इंटरेक्शन वहाँ पे भी कम हो गया और वो स्पेसिफिक एक पोजीशन पे एक ड्रोन जब एक स्पेसिफिक पोजीशन पे गिरा वहाँ से वायरलेसली चार्ज होके वहाँ पे वायरलेस चार्जिंग होगी. ऐसा पॉसिबल है ड्रोन्स के साथ और वो इफेक्टिव वे होगा सोलर पैनल्स का यूज करना ड्रोन्स में. As such हम डायरेक्टली अगर अभी के टाइम में करेंगे, एक तो उसका वेट व्हेन यू विल वर्क ऑन द ड्रोन्स एक्चुअली ना, आई सजेस्ट यू मेक ए 500-600 ड्रोन, मतलब खुद से एक ट्राई करो. फिर देखो व्हेन यू वर्क ऑन द एरोडायनेमिक्स पार्ट ना, आई विल गिव द प्रिंटर फैसिलिटी इफ यू आर नॉट हैविंग प्रिंटर हियर. They are having 3D printer, they will give the you are 10-15 people, buy a spool of like 1000 rupees, give them the spool, print almost एक बोला था ना, इन्होंने डिसाइड किया था जब भी ट्रेनिंग में स्टार्ट किए थे तो उन्होंने कहा था बना लेंगे अपना. फिर इनको थोड़ा आपस में सर नहीं इशू क्या हो गया? टीम इज, अगर आप टीम में काम नहीं करेंगे तो इससे नहीं सर एक्सपेंसिव या तो पूरा
एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर का हाँ हाँ सर, देखो, एक्सपेंडिचर जैसे का वो तो उदाहरण- बताओ ना एक्सपेंडिचर का इशू है फ्रॉम मिनिस्ट्री, तो जब मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? ये सारे कोर्सेज हमारे से फंडेड होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई फंडिंग, ईएचडीपीज, एमडीपीज, ईएपीज। एक एक प्रोग्राम के लिए अगर आप सुनोगे कितना कितना बजट होता है, मैं तो बातें करने के मैं पैसे ले रहा हूँ। सो फंडिंग एजेंसीज, एमएसएमई साल में हर बार आती है, एक साल में एक बार तो आती ही आती है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक प्रपोजल सेटअप करना है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचोगे, जैसे कि उन्होंने कहा 300-400 का बना देंगे, अब वो यूज कहाँ पे होगा? ऐसे ही जब आप मैं प्रोजेक्ट्स, आई रिव्यू द प्रोजेक्ट्स ऑफ एमएसएमई, आई रिव्यू द प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस आल्सो एनआईएफ, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के इंस्पायर अवार्ड्स के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो आई रिव्यू दैट। सो वहाँ पे हम जो यूज देखते हैं, टेक्निकलिटी के साथ साथ ये भी देखना होता है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। और जब आप एक ड्रोन की बात करते हैं तो ड्रोन आपको ऐसे ही नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये ड्रोन कहाँ पे इफेक्टिवली यूज हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने चार्जिंग स्टेशन की बात की, आप इसका प्रपोजल दे सकते हो मिनिस्ट्री में। अभी तो ड्रोन्स तो सारे बना रहे हैं, हम चार्जिंग सिस्टम बनाएंगे इसका। गॉट माय पॉइंट? So when you make a proper proposal out of it, this can give you up to 15 lakh rupees. And your university is having very much good reputation all over the India. And when cost का जहाँ पे नाम आता है, लोग ज़्यादातर सोचते नहीं है कि फंडिंग दे ना। जैसे कि I was from Amar Singh College, and when I started, it was like there was multiple questions from, and one of the top scientists of Kashmir said, ये नहीं हुआ क्या बच्चा इंजीनियरिंग कंप्यूटर क्या ऐसे क्या? सो यू विल नॉट योर एआई स्टूडेंट्स, आपके पास बैकग्राउंड भी है, कॉलेज का सपोर्ट भी है, यू आर इन सच ए नाइस वीसी। तो वो जितना मैंने उनसे सुना कि वो आपको सपोर्ट भी करेंगे आई गेस। उसके मजीद भी एमएसएमई वो चीज़ भी नहीं देखेगी, आपका प्रपोजल देखेगी। आपका प्रपोजल बेहतर होगा, यू विल गेट 15 lakhs। देन व्हाट इज द फंडिंग इशू? Another thing, we are having BSTs के यहाँ पे सेंटर्स हैं, स्काई आई गेस, स्काई सेंटर इज देयर, स्काई सेंटर सर, वहाँ पे मिलती है इनको फंडिंग? मतलब वो इंक्यूबेट करते हैं लेकिन हाँ। फंडिंग फ्री से मिलती है स्कॉस से। So incubate, once you get incubated, you can also get incubated. So they are having the provision to get incubated. बस That, प्लान लेके आना है बस। हाँ, I said you know it's all about proposal. It's not सर हम ड्रोन बनाएंगे, हमें इंस्ट्रूमेंट दीजिए, ऐसा काम नहीं करेगा। सर हम ड्रोन का चार्जिंग सिस्टम बनाएंगे और उसके लिए कम से कम आपको 2-3 महीने रिसर्च करनी है कि एग्जिस्टिंग चीज़ें जो है हम उसमें क्या तब्दीली ला सकते हैं और उसके बाद क्या नोवेल्टी उसमें ला सकते हैं। When they will see your novelty, they will accept your proposal. उसके बाद GIF is there. If you have heard about this. Green Innovator, जैसे कि आपका स्काई यहाँ पे है, NIT में है GIF, कश्मीर यूनिवर्सिटी में है NIF, CII, ये सारी वो एजेंसीज है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है, आपको इंक्यूबेशन भी प्रोवाइड करती है और फंडिंग प्रोवाइड करती है। एट लास्ट मेरा नाम देख लो, वही सर हम खुद से भी स्पॉन्सर करते हैं। इफ योर प्रोजेक्ट इज, आई विल सेल्फ स्पॉन्सर दैट प्रोजेक्ट। आई हैव ऑलमोस्ट स्पॉन्सर्ड 10-12 प्रोजेक्ट्स दिस ईयर, in which like almost 2-3 projects completed। हम वो चीज़ भी करते हैं, मेरे साथ और भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो हेल्प करते हैं। In that we can do things together. Write down my email, you can contact me anytime. ajhussain@f1@gmail.com। I will share that। हाँ हाँ, मैं भेज दूँगा। I hope this is done। MSME के सारे भाग गए। This is what, that's like the reason I usually go with the student। क्योंकि टेक्निकलिटी सबको समझने की, सबके समझने की बस की नहीं है और सबका इंटरेस्ट भी नहीं है इसमें, because they don't know the exact value of technicality of anything। When you are starting any kind of business,
you must be aware about the technicality part also. और ज़्यादातर जब drones की बात होती है या हाई स्पेसिफिकेटेड एंड जो टेक्नोलॉजीज है उनकी बात होती है, वहाँ पे तो आपको पता होनी चाहिए कि मेरी टेक्नोलॉजी, अदरवाइज यू विल इजीली गेट